Good afternoon, friends. Yes, guys. I think we are done with trade bill and promissory note. I explained you what is promissory note. There is no separate accounting treatment as such for promissory note. Promissory notes accounting treatment is similar to that of bills of exchange. The one who draws the promissory note, he records it as bills payable, because who draws the promissory note? Dater. A debtor draws the promissory note and it is given to creditor. So one who is giving the promissory note, he accounts for it as bills payable, and to whom the promissory note is given accounts for it as bills receivable. The only difference in bill of exchange and bills promissory note is if it is drawn by a creditor on his debtor, we call it as a bill of exchange. If it is drawn by a debtor and given to his creditor, we call it as promissory note. और दोनों में का proper distinction तो मैंने आपको लिखा के दिया ही है. Now, today we need to complete this topic and we have to understand the last concept, and most probably last time I am teaching that accommodation bill. Under normal circumstances, what we have studied is against a credit transaction, a bill of exchange is drawn. But let us focus on this unique concept of accommodation bill. I want all of you to pay attention here. Let's say X has drawn an accommodation bill of rupees 15,000 for 2 months on Y. X has drawn an accommodation bill of rupees 15,000 for 2 months on Y. Under normal circumstances in trade bill, what we have studied till now, one who draws the bill, whom we call as drawer, is a seller or creditor. And the person on whom the bill is drawn is buyer or a debtor. So out of creditor debtor relationship, a bill of exchange is drawn. This is what we have studied. But guys, if you see, I have written that an accommodation bill has been drawn. एक accommodation bill draw हुआ है. तो सबसे पहला पॉइंट जो समझना है वो ये है, when an accommodation bill is drawn, the drawer is neither seller nor creditor. The drawee is neither buyer nor debtor. Without creditor-debtor relationship, such bill is drawn. Without creditor-debtor relationship. तो ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में अगर एकोमोडेशन बिल ड्रॉ हुआ है तो एकोमोडेशन बिल में क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप नहीं होता. उनके बीच में कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ नहीं होता है. देन द क्वेश्चन अराइजेस, अगर ऐसा है तो फिर बिल ड्रॉ क्यों हुआ? व्हाई द बिल हैज बीन ड्रॉन? द बिल इज ड्रॉन आउट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप टू accommodate फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के फाइनेंशियल नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए ड्रॉ किया गया वो बिल होता है. जैसे अगर आपको रेगुलर बैच का एग्जांपल याद आ रहा है तो मैंने जनरल ऐसे एग्जांपल दिया था कि लेट से कृष्णा को 1,000 रुपए की जरूरत है.
कृष्णा को 1000 रुपए की जरूरत है ना, पॉकेट मनी पिछले हफ्ते में किसी और के साथ खत्म हो गया है, तो अब क्या करे, घर पे तो मांग नहीं सकते। तो कृष्णा मेरे पास आया और कृष्णा मेरे को बोला कि सर प्लीज आप 1000 रुपए मुझे उधार दे सकते क्या। प्रॉब्लम ये है कि उसी टाइम पे मुझे भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे भी 500 रुपये लगने वाले हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार कृष्णा, मेरे कुछ 500 रुपये लगने वाले, मैं ही तेरे को मांगने वाला था, तू 1000 कहाँ से मांग रहा। नाराज हो गया कृष्णा, इतने होप्स के साथ सर के पास आया था कि सर 1000 रुपये देंगे, बट ये तो उल्टा हो गया, सर ही 500 रुपये मांग रहे। उसका छोटा सा हुआ हुआ चेहरा देख के मेरे को अच्छा नहीं लगा, और मैं बोला कि चिंता मत कर यार, अपने पास पैसे नहीं है तो क्या हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिमाग है। बोला तेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000 रुपए की है, मेरी कितनी है, 500 की है, टोटल कितने चाहिए, 1500 चाहिए। चल चल के बैंक पे डकैती करते। मजाक कर रहा हूँ, बैंक पे डकैती नहीं करते, बट एक तरीके से बैंक से पैसा निकालते हैं। तो एक काम कर कृष्णा, तू 1500 रुपए का मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर। यू ड्रॉ बिल ऑन मी फॉर 1500 रुपीज। क्वेश्चन arises, is Krishna seller, is he creditor, has he sold any goods to me, am I his debtor, am I his buyer? No, but still he is drawing a bill on me, वो मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है और मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये इसलिए हो रहा है कि हम दोनों को पैसों की जरूरत है। तो मैंने वो बिल क्या किया, एक्सेप्ट करके कृष्णा को वापस दे दिया। अब वो बिल का क्या यूज है, पैसा चाहिए ना उसके अगेंस्ट में। तो सिंपल है कि ही विल गो टू द बैंक एंड गेट इट डिस्काउंटेड, एंड जो भी पैसा आएगा डिस्काउंटिंग के बाद बैंक से, वो पैसा हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, जो भी एग्रीड रेशियो है उसमें। जैसे उसको 1000 चाहिए, मेरे को 500 चाहिए, तो 2:1 रेशियो है समझो। देखो स्क्रीन पे जो एग्जांपल है उसमें समझाता हूँ मैं आपको। लेट से ये डिसाइड हुआ है कि एक्स का शेयर 2/3 रहेगा और वाई का शेयर 1/3 रहेगा। सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा हो कि एक्स और वाई ये एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर है क्या, नहीं है। विदाउट क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप ये बिल ड्रॉ हुआ है। एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को वापस दे दिया। अब एक्स उस बिल का क्या करेगा, एक्स विल गेट इट डिस्काउंटेड विथ बैंक, एक्स उसका डिस्काउंटिंग करेगा। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट से बैंक ने 14,400 रुपीज कैश दिया, इसका मतलब डिस्काउंट कितना कट कर लिया बैंक ने, 600 रुपये। 15,000 रुपये का बिल है ना, तो 15,000 रुपये के बिल पे 14,400 रुपये बैंक ने दिए और 600 रुपये डिस्काउंट कट कर लिया बैंक ने। अब ये 14,400 किसके पास आए, पूरे के पूरे एक्स के पास आए। और पूरे के पूरे एक्स के है क्या, क्या रेशियो डिसाइड हुआ है, 2:1। पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, आपको लिखना है तो मैं बाद में टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीन पे ध्यान दो। बिल अमाउंट इज 15,000, कैश आया 14,400, डिस्काउंट कितना कट किया बैंक ने, 600। ये जो कैश आया है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, दोनों के लिए बिल ड्रॉ हुआ था ना, विदाउट क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप ये ड्रॉ हुआ हुआ है। एक्स और वाई था ना नामों पर, हाँ। एक्स का शेयर 2/3 है बेटा, तो 14,400 का 2/3 9,600, और वाई का शेयर विल बी 4,800। कुछ कुछ चीजें तो खुद होके कॉमन सेंस के साथ अप्लाई करनी चाहिए और तुरंत अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। जब कैश का शेयरिंग हो रहा है दोनों के बीच में, तो डिस्काउंट भी तो दोनों बेयर करेंगे ना, कि एज यूजुअल वापस बोलेंगे कि सिर्फ ड्रॉवर विल बेयर द डिस्काउंट। कैसे क्या ड्रॉवर मानेगा, मैं अगर कृष्णा को बोलता हूँ कि जा बिल डिस्काउंटिंग करा के ला, उसमें का 1/3 मेरे को दे, लेकिन डिस्काउंट पूरा तू बेयर करेगा, कैसे मानेगा कृष्णा। बिल जो ड्रॉ हुआ है वो दोनों के लिए ड्रॉ हुआ है ना, तो जो डिस्काउंट आएगा वो भी दोनों बेयर करेंगे, बोथ विल बेयर। So discount will also be borne by both in same proportion. 400, 200,
तो इस तरीके से अल्टीमेटली एक्स का ग्रॉस शेयर कितना हो गया ये बिल में? 10,000 कैश प्लस डिस्काउंट मिला के, विच इज 2/3। 15,000 का बिल था ना। व्हाट अबाउट वाई? 5,000 विच इज गोइंग टू बी 1/3। जिपते समझा? अब आप मेरे को बताओ कि डिस्काउंटिंग के बाद पूरा की पूरा पैसा किसके पास है? डिस्काउंटिंग के बाद एक्स के पास है, तो पूरा पूरा उसका है क्या? तो उसमें से जो वाई का शेयर है वो वाई को पास ऑन करना पड़ेगा। मेरे को बताओ वाई का शेयर कितना, अभी हमने नीचे कैलकुलेट किया, देखो कैश इज एंड डिस्काउंट। तो ऐसे टोटल 5,000 रुपये का शेयर जो है वो वाई का है, जो वाई को पास ऑन करना पड़ेगा। Which share is this which I am referring right now? ये किसका शेयर है? y का शेयर है। दिस इज y शेयर। तो x ने y को उसका शेयर दे देना है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो x y को 4,800 रुपए कैश देगा, 200 रुपए डिस्काउंट कट करके, ऐसे ग्रॉस 5,000 रुपए x ने y को दे दिए। अभी y की पैसों की जरूरत पूरी हो गई, उसको 5,000 रुपए चाहिए थे, x को 10,000 चाहिए थे, तो उसके पास 10,000 बच गए। 10,000 बच गए बोल तो डिस्काउंट जाके जो भी 9,600 बचे, तो दोनों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब चैलेंज ये है कि ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा ना ड्रॉई के पास। कौन है ड्रॉई? वाई ड्रॉई है। अगर ड्यू डेट के दिन वाई ड्रॉई है तो बैंक जाके वाई से पैसा मांगेगा। अब वाई ने बैंक को कितने देने? पूरे 15,000 देने पड़ेंगे। ये तो बिल कितने का था? 15,000। बट प्रॉब्लम क्या है कि वाई को तो 5,000 रिच मिले, क्यों तो ये ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं था कुछ परचेज सेल का, तो उसको तो 5,000 रिच मिले। वो बोल सकता कि मैं 5,000 रिच देता बैंक को। ऐसे नहीं हो सकता। तुमको, तुम रॉय हो पूरे 15,000 के, तो तुमको पूरे 15,000 बैंक को देने पड़ेंगे। नाउ इन दिस केस व्हाट हैज टू हैपन, X has to also remit his share in accommodation of 10,000 to Y on or before due date. ऑन और बिफोर ड्यू डेट एक्स ने खुद का शेयर भी वाई को पास ऑन करना चाहिए। तो एक्स विल पास ऑन ओन शेयर ऑफ 10,000। ये कौन सा, किसका शेयर है ये? एक्स का। और अब ऐसे टोटल 15,000 किसके पास आ गए? वाई के पास है। अब जाके वाई ये 15,000 रुपए बैंक को दे देगा, नहीं ये ट्रांजेक्शन यहाँ क्लोज हो जाएगा। आर यू गेटिंग? मतलब कृष्णा मेरे पास आया, कृष्णा ने 1,000 रुपए मांगे, मैंने बोला कि नहीं है मेरे पास, मेरे कुछ तू 500 रुपए दे। नाराज हो गया, उसका नाराजगी का इतना सा छोटा सा चेहरा देख के मैं बोला कोई बात नहीं, 1,500 रुपए का बिल ड्रॉ कर। उसने 1,500 रुपए का बिल ड्रॉ किया, मैंने एक्सेप्ट करके उसको दिया। उसने जाके बैंक में डिस्काउंटिंग किया, डिस्काउंटिंग करके जो पैसा आया उसमें से 1/3 मेरे को दिया, 2/3 खुद के पास रख लिया। खुद के पास जो 2/3 रखा, जाके मस्त घूम के आया, मजे करके आया, भुट्टा खाया, आइसक्रीम खाया, सब किया, छोटा सा गिफ्ट दिया, सब हो गया। अभी प्रॉब्लम ये है, टेडी बियर छोटा सा, हाँ। प्रॉब्लम ये है कि ड्यू डेट के दिन बैंक तो मेरे पास आया ना पैसा मांगने। बैंक ने कितने मांगे? पूरे 1,500 रुपए मांगेगा बैंक, तो पूरे 1,500। मैं बोल सकता कि नहीं नहीं मेरे को तो 500 रुपए मिले इस बिल के। बैंक बोलेगा तुम जाने क्या है क्या नहीं, तुम 1,500 के ड्रॉई है, 1,500 रुपए दो। नहीं दिया, नहीं नहीं, मेरे कृष्णा के एग्जाम्पल में 1,500। और अगर नहीं देते हो तो बिल विल बी कंसिडर्ड एज डिसऑनर्ड। बिल विल बी कंसिडर्ड एज डिसऑनर्ड। तो इस केस में लॉजिकली ये बात बनती है कि अगले महीने का पॉकेट मनी आते ही कृष्णा ने मुझे 1,000 रुपए दे देने चाहिए। उसमें मैं मेरे खुद के 500 रुपए डाल दूंगा, और ऐसे 1,500 रुपए मैं बैंक को पे करूंगा। झेपते? this is accommodation bill. So the bill which is drawn without any commercial relationship is called as accommodation bill. Any problem guys? अब ये लिख लो तुम स्क्रीन पे जो लिख रहा है, और जैसे लिखा है वैसे ही लिखो।
ऑनलाइन गाइज लिख रहे बेटा सब लोग? हो गया ये होने के बाद ये भी लिखो, बाकी है। हो गया लिख के? इसके बाद लिखो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। Distinction between trade bill and accommodation bill. Serial number, trade bill, accommodation bill. Serial number, trade bill, accommodation bill.
सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, ट्रेड बिल में लिखो ड्रॉन आउट ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, ड्रॉन आउट ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, एकोमोडेशन बिल में लिखो ड्रॉन आउट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, नंबर 2, ट्रेड बिल में लिखो रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई, relationship between drawer and drawee is that of creditor and debtor. Accommodation bill में लिखो relationship between drawer and drawee, relationship between drawer and drawee is not that of creditor and debtor. सीरियल नंबर 3, ट्रेड बिल में लिखो it may or may not be discounted with bank, it may or may not be discounted with bank. एकोमोडेशन बिल में लिखो इट इज नेसेसरीली डिस्काउंटेड विद बैंक, इट इज नेसेसरीली डिस्काउंटेड विद बैंक. बराबर है ना. डिस्काउंटिंग के बगैर तो पैसा आएगा ही नहीं. अरे एकोमोडेशन में है तो डिस्काउंटिंग कंपलसरी है, बट ट्रेड बिल में चार चार ऑप्शन है: रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंडोर्समेंट. सीरियल नंबर 4, ट्रेड बिल में लिखो discounting charges are borne by drawer only, discounting charges are borne, borne, are borne by drawer only. ट्रेड बिल में डिस्काउंटिंग अगर हुआ तो पूरा की पूरा पैसा ड्रॉवर कुछ मिलता है ना, तो वहां पे कौन बेयर करता है डिस्काउंट? ड्रॉवर अकेला. बट एकोमोडेशन बिल में अभी मैंने क्या बोला सामने तुम्हारे स्क्रीन पे, डिस्काउंट भी दोनों बेयर करेंगे. तो अंडर दिस राइट डाउन एकोमोडेशन बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस आर बोर्न, discounting charges are borne by both the parties under accommodation, are borne by both the parties under accommodation. Serial number 5, drawer does not remit, drawer does not remit any amount to drawee for honor of bill, drawer does not remit any amount to drawee for honor of bill. ट्रेड बिल में ड्रॉवर ड्रॉई को कुछ पे करता क्या? ट्रेड बिल में
काय को पे करेगा, उससे पैसे आने हैं, उल्टा गुड्स बेचे थे, क्रेडिट पे इसलिए। लेकिन एकोमोडेशन बिल में तो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है ना, तो ड्रॉवर को उसका शेयर ड्रॉई को रेमिट करना पड़ेगा। देखो ना स्क्रीन पे, एक्स को उसका 10,000 का शेयर पास ऑन करना पड़ेगा ना। अबे भूल गए क्या बे, सिखाया हुआ इतना, कैसे मठ जैसे बैठे सब आज मद्दड़। समझ में आ रहा क्या ये? लिखो इधर एकोमोडेशन बिल में, बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, drawer has to remit, drawer has to remit his share in accommodation, his share in accommodation to the drawee, to the drawee. Serial number 6th, ट्रेड बिल में लिखो, लॉस ऑफ बैड डेट्स, लॉस ऑफ बैड डेट्स will be a business loss. Loss of bad debts will be a business loss. ऑब्वियसली देखो, ट्रेड बिल में अगर बैड डेट्स हुए, ट्रेड बिल में अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया और बैड डेट्स हुए, तो बिजनेस लॉस रहेगा ना, कि तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में ड्रॉ हुआ हुआ वो बिल है ना। बट अगर समझो ये मेरा और कृष्णा का जो एग्जांपल था, इसमें हम दोनों में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया, लॉस हो गया, तो वो लॉस बिजनेस लॉस कैसे माना जाएगा? तो हमारे बीच में कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन तो थे ही नहीं, कमर्शियल रिलेशनशिप तो था नहीं, आउट ऑफ फ्रेंडशिप हमने बिल ड्रॉ किया एक दूसरे के ऊपर, एंड देयरफॉर इन दिस केस इट विल बी अ पर्सनल लॉस। तो एकोमोडेशन बिल में लिखो, लॉस ऑफ बैड डेट्स, loss of bad debts will be a personal loss. And here comes the most important point. Last point. Serial number 7. Trade bills are allowed in India. Trade bills are allowed in India accommodation bills are not allowed in India. लिखा? Yes. This is distinction guys. As I told you that distinction का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो अलग अलग डिस्टिंक्शन जहां जहां आते हैं मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। अब नीचे लिखो, ये हो गया कंप्लीट। नीचे लिखो, इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल, डिस्टिंक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगले लाइन पे लिखो, इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल्स we come across following possibilities. We come across following possibilities. स्क्रीन पे देखो सब लोग, आगे का पार्ट लिखने के पहले आई वॉन्ट फुल अटेंशन ऑन द स्क्रीन। देखो, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया,
एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, एक्स ने बिल डिस्काउंटिंग किया और फिर एक्स ने वाई का जो शेयर है वो वाई को दे दिया। यहां तक का पार्ट तो कॉमन है, एकोमोडेशन स्टार्ट ही वहां पे हो रहा है ना। तो एक्स वाई के ऊपर बोल तो ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर एकोमोडेशन बिल ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉई वो एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को दे रहा है, ड्रॉवर वो बिल का डिस्काउंटिंग कर रहा है एंड डिस्काउंटिंग करके उसमें का प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ ड्रॉई वो ड्रॉई को दे रहा है। यहां तक की चीजें तो कॉमन है। इसके आगे जो है ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर वन, ड्रॉवर ने ड्रॉई को उसका शेयर भी पास ऑन किया है। एक्स हैज रेमिटेड हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू वाई, तो ड्रॉवर रेमिटेड हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू ड्रॉई एंड ड्रॉई ऑनर्ड द बिल, और ड्रॉई ने ये बिल जो है वो ऑनर कर दिया। ये पहली पॉसिबिलिटी। बट जरूरी है क्या सब लोग ऐसे करेंगे या ऐसे हो गई? नहीं। पॉसिबिलिटी नंबर टू, पॉसिबिलिटी नंबर टू, एक्स ने उसका शेयर वाई को नहीं दिया, एक्स डिड नॉट रेमिट हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू वाई। तो जो 10,000 रुपए एक्स ने वाई को देने थे वो दिए नहीं, फिर भी वाई ने बिल ऑनर कर दिया, स्टिल वाई ऑनर द बिल। यार दिलदार, याद आ रहा है क्या? यार दिलदार। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक्स ने वाई को पैसे दिए, एक्स ने वाई को पैसे दिए, ये 10,000 रुपए एक्स ने वाई को दिए, बट वाई स्टिल डिसऑनर्ड द बिल, वाई ने पैसे दिए नहीं बैंक को। यार गद्दार, याद है तुमको? यार गद्दार। और एक पॉसिबिलिटी है, दोनों गद्दार, टिट फॉर टैट, एक्स ने वाई को पैसा दिया नहीं और वाई ने बिल डिसऑनर कर दिया, टिट फॉर टैट। तो ऐसे चार पॉसिबिलिटीज आते हैं। दोनों सुशील सर की तरह ऑनेस्ट है, वो पहली पॉसिबिलिटी। बोल तो एक्स हंसते गए। हाँ, एक्स ने एक्स ने खुद का शेयर वाई को रेमिट किया एंड वाई ऑनर्ड द बिल। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक्स डिड नॉट रेमिट हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू वाई बट वाई ऑनर्ड द बिल। यार दिलदार। बोल तो एक्स ने पैसा दिया नहीं वाई को, फिर भी वाई ने बिल ऑनर कर दिया, तो यार दिलदार है यार। कौन? वाई। एक्स रेमिटेड हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू वाई बट वाई डिसऑनर्ड, तो पूरा पैसा लेखा बैठा है एक्स, हाँ वाई, पूरे पैसे, फिर भी उसने डिसऑनर कर दिया, इट इज यार गद्दार। एंड लास्ट टिट फॉर टैट। लिखो नंबर वन, ड्रॉवर remits his share in accommodation to drawee, drawer remits his share in accommodation to drawee and drawee honors the bill, and drawee honors the bill. That is, a friend in need is a friend indeed. याद ऐसे लिखो बेटा, क्या है ना, ये हंसी मजाक के लिए नहीं है, सिचुएशन याद रह जाती है इससे। दैट इज, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। नंबर टू, drawer did not remit, drawer did not remit his share in accommodation to drawee, his share in accommodation to drawee, but drawee honored the bill, but drawee honored the bill. That is, यार दिलदार। Next, drawer remits his share in accommodation to drawee, drawer remits his share in accommodation to drawee,
but Droy dishonors the bill. But Droy dishonors the bill. That is Yar Gaddar. Last. Drawer does not remit his share in accommodation to Droy. Drawer does not remit his share in accommodation to Droy. And Droy dishonors the bill. And Droy dishonors the bill. That is tit for tat. The only problem left is third problem, which is on accommodation bill. Problem number 3. Page number 7. Suresh draws a bill for 15,000 on Anup for 15th April 2020 for 3 months, which is returned by Anup to Suresh after accepting the same. Suresh gets it discounted with the bank for 14,700 on 18th April 2020 and remits one third amount to Anup. On due date, Suresh fails to remit the amount due to Anup but accepts bill of 17,500 for 3 months, which Anup discounts for 17,100 and remits 2825 to Suresh. Before the maturity of renewed bill, Suresh becomes insolvent and only 50% was realized from his estate on 31st October 2020. Past journal entries for the above transactions in the books of Suresh. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये इंस्टीट्यूट ने जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ना, उसमें ना अमाउंट्स गलत हुए थे. जस्ट मैं आपको कंफर्म कराता हूँ. वो जो फोर्थ लाइन है ना, फोर्थ लाइन, फोर्थ, वो 17,500 का सेकंड बिल है ना, उसको 19,500 करो आप, 19,500 करो, क्यों तो मैच ही नहीं होता अदरवाइज फिगर. एग्जाम में गलती आया हुआ है और सॉल्व भी गलती किया है इंस्टीट्यूट ने सही आंसर में, बट ये ऐसे सॉल्व नहीं होता. अमाउंट ही गलत है कंप्लीटली, क्यों तो एकोमोडेशन का जो रेशियो है वही मेंटेन नहीं होता है उसकी में. उसको 19,500 करो. किया. उसका डिस्काउंटिंग जो है, डिस्काउंटिंग 19,200 करो 17,100 की जगह, 19,200. और आगे का जो फिगर है 2825, उसको 2,800 करो, 2,800. वापिस एक बार बोलता हूं, सेकेंड बिल की अमाउंट कितनी करोगे?
19,500, फिर डिस्काउंटिंग कितने में हुआ? 19,200, और आगे की फिगर 2,800। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी खुद ऐसा प्रॉब्लम है, सिमिलर अमाउंट बदले हुए, बट ये एग्जाम में जो आया उसमें अमाउंट्स ही कंप्लीटली गलत थे, जिसका और लॉजिक कुछ भी नहीं है, अमाउंट जो आंसर में आते उसके। कर दिए? लिखो प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 7। लिखो 1.5 page format in the books of Suresh. करें स्टार्ट? वो भी बंद कर देंगे तो सब बंद हो जाएंगे। पांच मिनट में चालू करने को तुम ही बोलोगे, देखना। नहीं बोलेंगे? देखो हाँ, मैं तो रह जाऊंगा, मुझे आदत है। बैठ नहीं पाओगे। लिखो 15 अप्रैल 2020। 15 अप्रैल 2020। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू Anup account 15,000, being accommodation bill drawn for 3 months. Being accommodation bill drawn for 3 months. April 18th, this bill is discounted with bank. Cash or bank account debit. $14,000. Discount account debit. To bills receivable account.
15,000 being bill discounted with bank. How much amount is remitted to Anup? सब लोग प्रॉब्लम पढ़ो, रेडीमेड आंसर कॉपी मत करो, मैं लिख रहा हूं इसलिए. हाउ मच अमाउंट इज रेमिटेड टू अनूप? 1/3. टोटल बिल अमाउंट कितना था? बोल तो अनूप का ग्रॉस शेयर कितना होगा? 5,000 होगा. अनूप अकाउंट डेबिट 1/3 उसको पास ऑन करेंगे अपन. 5,000 टू कैश और बैंक. कैलसी पे लो. 14,700 का 1/3 देना है कैश का. 4,900 और डिस्काउंट भी पास ऑन होगा 1/3. कितना आता है डिस्काउंट 1/3? 100 रुपए. being transfer of one-third share in accommodation being transfer of one-third share in accommodation along with proportionate discount along with proportionate discount अब 5,000 रुपए अनूप के पास चले गए, बच गए कितने? 10,000. तो वो लॉजिकली 10,000 सुरेश ने अनूप को देने चाहिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट. दिया नहीं उसने. ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप. बोल तो सुरेश ने उसका शेयर अनूप को दिया नहीं. दो पॉसिबिलिटीज है, या तो अनूप बिल को ऑनर करेगा, यार दिलदार बन जाएगा, या तो टिट फॉर टैट होगा, अनूप वोंट ऑनर द बिल. बट यहाँ यार दिलदार हुआ है क्योंकि सुरेश ने अनूप को अमाउंट दिया नहीं, लेकिन सुरेश ने नया बिल ड्रॉ किया. बोलता अनूप ने ड्रॉ किया. अनूप नया बिल ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब भी पहले का बिल उसने ऑनर किया ना, और इसीलिए वो नया बिल ड्रॉ कर रहा है. तो पुराने बिल के पैसे अभी तक सुरेश से आए नहीं है. सो दिस इज द केस ऑफ यार दिलदार. तो रेमिटेंस हुआ नहीं, तो रेमिटेंस की एंट्री आएगी क्या? बट ड्यू डेट क्या थी पहले बिल की? 18 जुलाई थी. तो 18 जुलाई को पेमेंट तो हुआ नहीं, बट बिल ऑनर हुआ है. अब मेरे को बोलो डिस्काउंटेड बिल ऑनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में आती है क्या? डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में आती है क्या? नहीं. तो ना इसने पैसा दिया, ना ऑनर की एंट्री आएगी, तो इसकी तो एंट्री ही नहीं आने वाली. लेकिन फ्रेश बिल एक्सेप्ट किया है, उसकी एंट्री करेगा अब वो ये. अब उसके लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल 18th जुलाई. व्हाट विल बी द एंट्री? बोलो एंट्री. अनूप अकाउंट डेबिट, मैंने अमाउंट करेक्ट कराई ना, 19,500 टू being fresh bill accepted for 3 months being fresh bill accepted for 3 months. ये जो फ्रेश बिल है इसका ड्रॉवर कौन है? अनूप है. तो डिस्काउंटिंग कौन कराएगा? अनूप ही कराएगा. तो सुरेश के बुक्स में एंट्री होगी क्या डिस्काउंटिंग की? नहीं होगी. बट डिस्काउंटिंग के बाद पैसे कितने आए? 19,200.
एक काम करो बेटा, कैलसी पे लो, 19,200 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3। 12,800 रुपये इसको आने चाहिए। सुरेश का शेयर 2/3 है ना, तो 19,200 का 2/3 12,800। पूरा 12,800 नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? पहले बिल के 10,000 बाकी है ना, उसके लिए तो फ्रेश बिल आया, तो वो 10,000 कम हो जाएंगे। तो 12,800 में से वो 10,000 कम हो गए तो कितने आ गए? 2,800। तो 2,800 मिलेंगे, समझते हैं? 2,800 तो कैश मिलेगा, प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट भी तो आएगा। प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट कितना? 200 रुपए। क्यों? तो सेकेंड बिल का अमाउंट कितना था? 19,500, और डिस्काउंटिंग कितने में हुआ है? 19,200। तो 300 रुपए का टोटल डिस्काउंट है, तो उसका शेयरिंग कितना? 2/3 बोल तो 200। मैं बाद में वर्किंग करा के देता हूं, एंट्रीज लिख लो एक बार। 18 जुलाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 2,800। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू अनूप 3,000, टू अनूप 3,000, being receipt of proportionate share in accommodation, proportionate share in accommodation after adjustment of outstanding balance of first bill, outstanding balance of first bill अब इसके बाद क्या हुआ? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ रिन्यूड बिल सुरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट। इतना सब करके सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल डिसऑनर करना पड़ेगा। 18 जुलाई के आगे 3 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 21 अक्टूबर। व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज, बिल कितने का था? 19,500 टू अनूप 19,500 being bill dishonored due to insolvency, being bill dishonored due to insolvency। अब मेरे को बताओ, सेकेंड बिल अमाउंट, सेकेंड बिल का जो अमाउंट है टोटल 19,500, उसमें से 2/3 सुरेश के पास है ना। पहले बिल के 10,000 थे ही, और उसके अलावा जो शेयर बनता है उतना पास ऑन किया ना उसको। तो 2/3 कितना आता है 19,500 का? 13,000। 19,500 इंटू 2/3 13,000। अरे डिस्काउंट तो बेयर हो गया ना रे भाई, डिस्काउंट को छोड़ दो अब। सेकेंड बिल अमाउंट कितनी थी? 19,500 था।
तो उसमें उसका 2/3 शेयर, वो तो 13,000 था, जिसमें से कैश उसको 2,800 प्लस पहले बिल का 10,000, 12,800 मिल गया और 200 का डिस्काउंट उसने बेयर किया। तो सुरेश के पास वैसे 13,000 रुपए पहुंच गए ना रे, और बचे हुए अनूप के पास है। अब सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया तो अनूप काय को देगा वो? हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि सुरेश के जो 13,000 है अब वो मिलने से रहे ना। कितना रिकवरी हुआ है फाइनली? 50% वॉज रियलाइज, तो कितना रियलाइज होगा? 6,500, 13,000 में से हाफ, 6,500, बचा हुआ 6,500 विल बी बैड डेट्स फॉर अनूप एंड डेफिशिएंसी फॉर सुरेश। हम किसके बुक्स में है? सुरेश। 31 अक्टूबर लास्ट एंट्री। अनूप अकाउंट डेबिट 13,000 to cash or bank account, 6,500 to deficiency account, 6,500. Being payment of final dividend under insolvency, being payment of final dividend under insolvency, हो गया। अब ये जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन दिखाया ना तुमको, अमाउंट जो लिए 2,800, 200, 3,000, थर्ड लास्ट एंट्री देखो, तो वो 2,800 और वो कैसे आए वो कैलकुलेशन दिखा देते। वर्किंग नोट, छोटा सा वर्किंग नोट करते। कैलकुलेशन ऑफ रेमिटेंस बाय अनूप टू सुरेश। राइट हैंड साइड कॉर्नर 3 कॉलम्स, ग्रॉस रुपीज, नेट रुपीज, डिस्काउंट रुपीज, ग्रॉस नेट डिस्काउंट। What is the amount of second bill, guys? 19,000 net, 19,200 and discount 300 था। अरे प्रॉब्लम में से देख के बोलना है सिर्फ। ग्रॉस अमाउंट 19,500, नेट 19,200 एंड डिस्काउंट 300। परसों तक, सैटरडे तक तो सब नॉर्मल था बे, एक दिन छुट्टी दी तो बीच में ढेपड़ गए क्या सब? अकाउंट्स को तो छुट्टी थी ना। तुमको छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी तुम्हारी फिर अब। हाँ ना, तुम ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाते। अच्छे आंसर दे रहे थे परसों तक, आज क्या हो गया है? चाय पीना है क्या? कल से पी के आया करो क्लास के पहले।
Suresh share in second will bracket 2/3. बोलो। वो 2/3 भी मेरे पास देखो मत करो। इतनी डिपेंडेंसी काम की नहीं दूसरों पे, प्रॉब्लम होता है। 13,000, 12,000 एंड बराबर है। बट ये पूरा अमाउंट मिलेगा क्या उसको? नहीं, लेस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस विथ सुरेश in respect of first bill. फर्स्ट बिल के अगेंस्ट में कितने रुपए बाकी है उसके पास, तो वो एडजस्ट करेंगे हम। ग्रॉस में भी नेट में भी डिस्काउंट में कोई संबंध नहीं। देयरफॉर नेट रेमिटेंस बोलो। 3,000, 2,800, 200 डिस्काउंट, बरोबर है। इतना एंट्री किया ऊपर, थर्ड लास्ट एंट्री देखो क्या किया, कुछ दिमाग में गया क्या? सबके सबके पास दिमाग है? गुड। एनी प्रॉब्लम? यूट्यूब स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? यूट्यूब स्टूडेंट्स,